polarization. Okay, anything you know about polarization? Sir, splitting of something. Sir, it depicts the direction of their oscillations. Reflection. Partition. All right, all right. Now some questions for all of you. How polarized sunglasses work? You might have heard sunglasses, but there is one more category of sunglasses, and that is called as the polarized sunglasses, which are a little bit costly than the regular sunglasses. All of you know that we use the sunglasses to protect our eyes from sun radiations and dust also. Then second question, what is the function of polaroid in cameras? सो कैमराज में हमने शुरू में देखा था इंटरफेरेंस में कि जो लेंसेज होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, वो आपने अपने मोबाइल के कैमरा के लेंस के ऊपर भी देखा होगा, छोटी लेंस है लेकिन उसके ऊपर भी कोटिंग होती है, एक पर्पल कलर का एक लेयर वहां पे होता है, दैट इज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। उसके साथ साथ कैमरा में हमारा जो पोलराइजेशन है वो फिनोमेनन भी वहां पे यूज होती है। सो ये पोलराइजेशन जो फिनोमेनन होती है, सो जहाँ पे ये पोलराइड्स यूज किए जाते हैं, सो दिस पोलराइड्स आर यूज्ड इन दैट। Third, what is the principle of working of liquid crystal displays, LCDs? LCDs are very common display devices which are used in the mobiles, televisions, and other so many devices like digital watches. So where these the LCDs are used. So do you know the principle of working of it? Obviously, you would not be knowing this. How one can find the concentration of sugar solution using light? Light का यूज करके शुगर का solution शुगर इंडस्ट्री में फाइंड आउट कर सकते हैं। One common phenomenon for all this is called as a polarization of light. तो हर जगह यहाँ पे पोलराइड सनग्लासेस हो या पोलराइड फिल्टर हो कैमरा में, या फिर LCD में जो प्रिंसिपल यूज किया जाता हो, या फिर शुगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला टेक्निक हो, हर जगह पे पोलराइजेशन की फेनोमेनन यूज की जाती है। दीज आर जस्ट सर्टेन simple examples. There are so many hundreds of applications of the polarization phenomenon is there, and therefore you should know some basics about the polarization. Now, before starting of this polarization, before understanding the polarization, you must know the difference between the transverse and longitudinal waves. Can you tell me the difference between transverse and longitudinal waves? In transverse waves, there is a crust and trough, and in longitudinal, there are compression and rarefaction. Whatever you told, that is absolutely correct. One more difference is there. So transverse waves cause the medium to move perpendicular to the direction of the wave, and longitudinal waves cause the medium to move parallel to the direction of the wave. Very good, very good. So that is the main difference between the transverse waves and longitudinal waves that makes them differentiate. So waves vibrating perpendicular to the direction of propagation are called transverse waves. For example, the waves on the string, waves on water surface, okay, or electromagnetic waves, radio waves, so light waves, all these waves are transverse waves, okay, like this, which are having crest, trough, crest, trough. They are having particular wavelength and their movement is perpendicular to the direction of propagation. You can generate these transverse waves in a string by just keeping one point stationary and other point vibrating at other point vibrating. You will find that the waves will generate here. They will the particles of the medium will get vibrated or moved up and down, okay, but they are not moving their physical position from left to right here, but you will observe that, or you will feel that the something is moving from left to right. So wave is moving, but it is not the particles which are moving from left to right. So such waves are called as a transverse waves. Now what are the longitudinal waves? See, longitudinal waves यानी कि example होता है sound waves. Sound waves में क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जब भी आप बोलते हो या फिर कहीं से आवाज आती है, तो हाउ साउंड गेट प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कॉम्प्रेशंस यानी कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, रेयरफैक्शन यानी कि जहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो पार्टिकल तो वही जगह पे होते, पार्टिकल मूव नहीं होते, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह, वो वाइब्रेट होते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होते। सो ये जो पार्टिकल है, इनकी जो मोशन होती है वो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर दिस पार्टिकल विल मूव हियर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, उसके राइट में जो पार्टिकल होगा उसको एनर्जी मिलेगी, वो फिर दूसरे को ट्रांसफर करेगा। इस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो मोशन होती है पार्टिकल्स की वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है और
direction of motion of the wave is also horizontal. Means waves vibrating parallel to the direction of propagation are called as a longitudinal waves. So very good example of longitudinal waves is the sound waves. The fact that light is having wave nature can be proved by interference and diffraction phenomenon, but transverse nature of light can be proved only by the phenomenon of polarization. Remember this, diffraction ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, इंटरफेरेंस भी स्टडी किया है, लेकिन वो जो फेनोमेनन है उससे हमें ये पता नहीं चलता है कि लाइट हैज अ ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्जिट्यूडिनल नेचर. इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये प्रूव करते हैं कि लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर. ओके, लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर, but it doesn't tell that whether it is a transverse wave or a longitudinal wave. But पोलराइजेशन फेनोमेनन ऐसी फेनोमेनन है जो बताती है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि पोलराइजेशन फेनोमेनन इज शोन ओनली बाय द ट्रांसवर्स वेव्स. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स डू नॉट शो द पोलराइजेशन फेनोमेनन. जैसे कि साउंड वेव्स जो है पोलराइजेशन के फेनोमेनन दिखाते नहीं है. A light ray is nothing but an electromagnetic wave having transverse wave nature, while sound waves are longitudinal in nature. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. पार्टिकल्स आर और मीडियम पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ perpendicular direction to the direction of wave. Now what is polarization definition? Alignment of vibrations of light waves only in one plane is called as polarization of light. So see, यहाँ पे एक graphical representation है. Okay, this is not exactly like this, exactly ऐसे नहीं होता है, but it is a representation कि ये polarization का क्या idea है वो समझने के लिए ये diagram है. So यहाँ पे आपको दिख रहा है polarizer 1, यहाँ पे है polarizer 2. Polarizer 1 is vertically aligned, polarizer 2 is horizontally aligned. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है इंसिडेंट बीम जो कि अनपोलराइज लाइट है. अनपोलराइज लाइट यानी कि क्या, जो कि ऑर्डिनरी लाइट होती है जिसमें लाइट जो रेज होते हैं उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन की डायरेक्शन रैंडम होती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे. इन एक्चुअली इट्स अलोंग ऑल डायरेक्शंस. बट व्हेन दिस पर्टिकुलर all direction vibrating light falls on this polarizer, only certain component or certain direction vibrating component will get passed through it and other component will get blocked. So only one plane of vibration, that is vertical here, will be passed through this polarizer and other components will get blocked. Again, when this vertically vibrating plane polarized light get incident on the second polarizer, but second polarizer is along horizontal direction, so that vertically vibrating light will get completely blocked by it. To understand this, we can use the mechanical concept also. So this is what is the atomic concept that is shown in the above figure. Below figure shows a mechanical example of this polarization of light. If you make a slit through a thick card sheet like this, and if you tie the rope and if you pass this rope through that slit, and if you start to vibrate this, you will find that waves will get generated here along the vertical direction. Your slit's direction is also vertical. But if you rotate the slit through 90 degrees, then you will find that these waves which you have generated by your hand will not reach to the other part of the slit. So this is how you have blocked that particular vibration. So the same principle is used in this particular second polarizer. Now, how we can represent the types of polarizations? So unpolarized light is represented by multiple direction arrows. Okay, yes, unpolarized light यानी कि ordinary light का example है sunlight. आपके घर में ट्यूब लाइट होती है, कौन सा भी लाइट ले लो, मोबाइल का टॉर्च ले लो, all these are the unpolarized light. Ordinary light होती है जो रिप्रेजेंट की जाती है इस तरह से two head arrows which are directing in the multiple directions. So this is how we represent the unpolarized light. Vertically plane polarized light. अभी यहाँ पे horizontal arrow indicates the direction of propagation and vertical arrow indicates the direction of vibration. So here, if there is only one direction of the vibration, that is vertical, then it is a vertically plane polarized light. Instead of one arrow, there might be 2-3 parallel arrows like this. Then horizontally plane polarized light is indicated by one arrow which indicates the direction of the propagation and dot indicates the direction of vibration.
Now here dot indicates the horizontal vibration, यानी कि which is perpendicular to the plane of the figure. Dot indicates vibrations of the wave are perpendicular to the plane of the figure. Okay, अभी आपकी जो फिगर है वो 2D है, इसलिए यहाँ पे वो दिख नहीं सकता है थर्ड डायमेंशन. Then partially polarized light is indicated by two arrows with the different sizes which are perpendicular to each other. एक एरो बड़ा होगा, दूसरा एरो छोटा रहेगा परपेंडिकुलर. इसका मतलब है कि आपकी जो लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है. देन डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट. पोलराइज्ड लाइट जो है अलग अलग मेथड से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि बाय रिफ्लेक्शन. वेरी सिंपल टेक्निक इज बाय रिफ्लेक्शन, सेकंड बाय रिफ्रैक्शन, थर्ड डबल रिफ्रैक्शन, फोर्थ डाइक्रोइज्म और इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन एंड लास्ट स्कैटरिंग. तो इसमें से सबसे जो सिंपल है वो रिफ्लेक्शन वाली है. स्कैटरिंग की फेनोमेनन जो होती है वो एयर में होती है. एयर में यानी कि एनवायरनमेंट में गए, आप ऊपर की तरफ गए एट हायर स्केल, तो वहां पे जब जाओगे तो आपको वहां पे स्कैटरिंग की फेनोमेनन होती है और उसी की वजह से आपको जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है. डाइक्रोइज्म जो फेनोमेनन होती है सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन की, जो कि पोलराइड शीट्स, पोलराइड सनग्लासेस वहां पे यूज की जाती है. रिफ्लेक्शन की फेनोमेनन आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो. रिफ्रैक्शन के लिए आपको मल्टीपल ग्लास प्लेट्स की जरूरत होती है. और डबल रिफ्रैक्शन जो फेनोमेना होती है वो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स ही दिखाते हैं. ठीक है, ओके. इन शॉर्ट ये ऐसे 5 मेथड्स है अलग अलग जिससे कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं. Now polarization by reflection. This particular technique already you know. This is not in syllabus but still you should know about this. Polarization by reflection. Polarization reflection में क्या होता है? Actually what you have studied is a Brewster's law. तो वो ब्रूस्टर्स लॉ ही यहाँ पे है. सो इसमें क्या होता है, एक ग्लास है और इसके ऊपर ऑर्डिनरी लाइट गिर रही है. ऑर्डिनरी लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एंड डॉट. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी लाइट and this dot and this particular line indicates this is a vibration. These are the vibrations which are along all direction. मैंने आपको सिंबल बताया था कि अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे दिखाते हैं. दूसरा वे भी इसमें है, इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं. ओके, एंड सम टाइम एरो भी यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं लाइक दिस. सो वाइब्रेशंस आर अलोंग दिस डायरेक्शन एज वेल एज डॉट. डॉट यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर और ये अलोंग द प्लेन ऑफ द फिगर. तो यानी कि वाइब्रेशन जो है सारे डायरेक्शन में होते हैं. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट. इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम Encyclopedia Britannica. So this is an ordinary light which is vibrating along all directions, and when it falls, then all of you know that it will get partly reflected and partly refracted, but at a certain condition, and that is called as a angle of polarization P. So when angle of incidence is a certain angle which is a fixed for a particular combination of the मीडिया, दैट इज एयर एंड ग्लास. तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल होता है. इट इज अराउंड 57 पॉइंट समथिंग डिग्रीज एंगल होता है ये. सो इस एंगल से अगर यहाँ पे लाइट गिरती है, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच इज इंडिकेटेड ओनली बाय डॉट 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 एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एरो. This is again angle of reflection which is same as the angle of incidence. Not just this. यहाँ पे और एक सरप्राइजिंग चीज होती है. What is that? Anybody can tell me? Brewster's law. Okay, Brewster's law हमें ये बताता है कि when angle of incidence is angle of polarization, then the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. ओके, ये हमें ब्रूस्टर बताता है. ओके, उसका और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, tan P is equal to what? I. N2 by N1. Sin upon cos. What is this? Refractive index. Yes. So tan P is equal to mu. This is mu. Okay. Mu यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल. ये जो ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके,
So tan P is what? Angle of polarization is equal to mu. ये उसका लॉ है, ब्रूस्टर्स लॉ। कभी कभी यहाँ पे P की जगह IP भी होता है, ओके, लाइक दिस IP, यानी कि अगेन एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सो tan IP या फिर tan P कुछ भी बोलो इज इक्वल टू म्यू। दिस इज अ ब्रूस्टर्स लॉ। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, ओके। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको MCQ पूछा जा सकता है। सो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और एक बात इसमें होती है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है, सो दैट इज अ पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो ओरिजिनल लाइट है हमारी ये वाली, तो इसमें से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो नीचे आने वाली ट्रांसमिटेड जो लाइट है, तो उसमें वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कम होगा, यानी कि जो अदर कंपोनेंट है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, यानी कि ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट रहेगी, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस सिंबल से। सो यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स, ओके। Though it is not given in syllabus, whatever I have told you is important and question may be asked based on this, because this is basic. Then now very important thing we have to see here, and that is called as a law of malus. Law of malus एक इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी है, वो प्रैक्टिकल भी हमारा हो जाएगा। और इसका जो है इक्वेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे, ओके। EMCQ तो 100% आने वाला है इसके ऊपर। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस malus लॉ। पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट कमिंग फ्रॉम एनालाइजर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं। सो डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है? Unpolarized light. अनपोलराइज्ड लाइट दिख रही है, और क्या दिख रहा है? हाँ, पोलराइजर दिख रहा है, और vertical plane polarized light. vertically plane polarized light, that is correct. Polarizer and analyzer. Polarizer and analyzer, okay, very good. So see, there is one polarizer and there is an analyzer. Polarizer and analyzer physically are same, only they are placed at two different places, therefore one is called as a polarizer because it polarizes the light, and second polarizer analyzes the light, therefore it is called as analyzer. UPL means what? Unpolarized light. Correct. Unpolarized light, which is indicated by the multiple directed arrows. And PPL means Partially polarized light. not partially. PPL means plain polarized light. PPL means plain polarized light. So यहाँ पे unpolarized light होती है, और यहाँ पे जो लाइट मिलेगी आपको वो प्लेन मिलेगी, पार्शियली नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ पोलराइजर। तो पोलराइजर से आपको प्लेन ही लाइट मिलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एंड अगेन देयर इज एनालाइजर। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पोलराइजर है और एनालाइजर है, दोनों के बीच कुछ एंगल बना है, एंड दैट एंगल इज थीटा, ओके। यू कैन रोटेट दिस एनालाइजर थ्रू 360 डिग्रीज, कितना भी आप उसको रोटेट कर सकते हो और दोनों के बीच एक एंगल बना सकते हैं। अभी ये एंगल क्या होता है, यहाँ पे अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइंस दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल पोलराइजर जो होता है उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ लाइंस नहीं होते, या फिर दिखता नहीं हमें कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ओके। उसको हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे दो पोलराइजर सेम दिख रहे हैं आपको, जैसे कि ग्लास के शीशे दिख रहे हैं, और जब आप रोटेट करोगे तो आपको पता चलता है कि वो एंगल कितना है। अगर एंगल 0 है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और जब एंगल आपका 90 डिग्री होता है तो आपको यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो उस एंगल से आप, उस इंटेंसिटी से आप बता सकते हो कि यहाँ पे एंगल थीटा कितना है दोनों के बीच। अदरवाइज देयर इज नो साइन दैट यू कैन डिसाइड वेदर इट इज वर्टिकल और इट इज tilted like this, okay. By just observing the intensity through this analyzer, you can say that there is an angle of 0 degree or 90 degree, and in between them you can calibrate. Then let I0 be the intensity of this plane polarized light which is coming from polarizer and which is incident on analyzer, and I be the intensity of the light which is coming from analyzer. Then now we have to prove this particular I is directly proportional to cos square theta. तो ये रिलेशन जो है अभी, ओके, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम
से हम स्टेटमेंट को फिर से रेफर करते हैं। ओके, सो डायग्राम आपको समझ में आई होगी। अगेन विल रिपीट दिस स्टेटमेंट। द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट कमिंग फ्रॉम एनालाइजर यानी कि I is proportional to the square of cosine of angle between polarizer and analyzer। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। थीटा है तो उसका कोसाइन यानी कि cos थीटा और उसका स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, यानी कि आपकी जो इंटेंसिटी बाहर आ रही है एनालाइजर से, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये है मालूस लॉ। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम थ्योरेटिकली यानी कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स यूज करके प्रूव कर सकते हैं, प्लस इसको हम प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जो प्रूफ है उसका वो प्रैक्टिकल में हम कंडक्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकल में वो प्रूव हो जाता है। ओके, नाउ हियर वी विल सी द थ्योरेटिकल प्रूफ, हाउ वी कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। लेट अस सी। नाउ होता क्या है कि एनालाइजर के ऊपर जो लाइट गिर रही है, ओके, वो वर्टिकली वाइब्रेटिंग है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है वो वर्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। तो सी, वर्टिकली पोलराइज लाइट यानी कि लाइट जो है इस डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट हो रही है, isn't it? तो यहाँ पे हम ये करेंगे, ये मानेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इट इज लाइक दिस फॉर आवर सिंप्लिसिटी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which is vibrating along vertical direction, okay, and I will represent this particular electric field by वेक्टर E like this, जो कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। सो ये वर्टिकल डायरेक्शन है विच इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजर। पोलराइजर का जो प्लेन है, ट्रांसमिशन प्लेन, उसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल है। और हमारा जो प्लेन पोलराइज लाइट PPL जो दिख रहा है, जिसकी इंटेंसिटी I0 है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय वेक्टर E। यहाँ पे E वेक्टर भी है और E एम्पलीट्यूड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड। देन अगर ऐसा है तो यहां से जो लाइट निकल के आ रही है, ओके, नाउ एनालाइजर से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे दो चेंजेस उसमें होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड का चेंज और दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का चेंज। यानी यहाँ पे वर्टिकली वाइब्रेट हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो लाइट निकल के आ रही है वो वर्टिकली वाइब्रेट नहीं हो रही है, बट इट इज inclined, its vibrations are inclined, it is somewhat like this। तो इसके डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की वो भी चेंज हो गई है, एंड उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। अभी होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेट्स, अभी एनालाइजर क्या करता है, एनालाइजर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी कोई अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वो जो वर्टिकली वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट में। ओके, दो कंपोनेंट में वो स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। एक कंपोनेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर और दूसरा कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल E इंडिकेट करता है इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनालाइजर, जो कि स्प्लिट होता है दो कंपोनेंट में। एक होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर, वर्टिकल इज डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर, और ये जो येलो कलर से दिखाया है वो है डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर। तो एनालाइजर दो कंपोनेंट में स्प्लिट करता है। एक कंपोनेंट यहाँ पे दिखाया गया है जो कि एंगल थीटा बनाता है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन से, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो पहले कंपोनेंट से परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। यानी कि इफ यू ऐड दिस पर्टिकुलर येलो वेक्टर with this perpendicular vector, then you will get the E vector। Are you getting my point? Yes, sir. या फिर इसको हम नाम देते हैं, let's say this is 1 and this is 2, so 1 plus 2, अभी अरिथमेटिक नहीं है,
ओके, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन 1 + 2 इज इक्वल टू E, या फिर E इज इक्वल टू 1 + 2। E यानी कि इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्प्लिट होता है दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट अलोंग एनालाइजर और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दैट कंपोनेंट। तो ऐसे दो कंपोनेंट में वो स्प्लिट होता है। उसमें से अभी जो स्प्लिट हो गए हैं उसमें से एक कंपोनेंट पूरा ब्लॉक हो जाता है, यानी कि कंपोनेंट 2 विल बी ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड यानी कि क्या, वो एनालाइजर उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, ओके, वो उसके आगे जाता ही नहीं है। एंड सेकंड कंपोनेंट जो है उसको वो इजीली पास कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो लाइट मिलती है एनालाइजर से, तो वो उसका जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन का वो इस डायरेक्शन में रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट यहाँ पे उसने एब्सॉर्ब कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, रिमेंबर दिस। You can complete this rectangle like this by dashed lines. Let E1 be the vector or amplitude of a transmitted component and E2 be the amplitude of blocked component. So this is blocked, E2 is blocked component. This amplitude, intensity, what amplitude or amplitude is blocked, and this is transmitted. Then अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को डिवाइड किया है E ने, और यहाँ पे एंगल थीटा है। सो व्हाट इज कॉस थीटा हियर? ये डायग्राम से मुझे बताओ कि कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। सो व्हाट इट विल बी? E1 upon E. Okay, E1 upon E. Okay, and rearranging this term we can write E1 is equal to E cos theta. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Same equation I have written here, E1 equal to E cos theta. Then इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखो, E1 का स्क्वायर E1 स्क्वायर, E का स्क्वायर E स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे E1 स्क्वायर जो है, E1 क्या है? E1 is the amplitude of the light which is coming from analyzer, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है? I है। सो दिस I and this E1 square will be equal because intensity is equal to amplitude square, is equal to E square cos square theta, और E क्या है? E is the amplitude of light which is falling on analyzer, और उसका स्क्वायर इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे? I0 है। तो इसीलिए E स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे I0 cos स्क्वायर थीटा। हेंस हमारा इक्वेशन बन गया I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे I0 क्या है? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम पोलराइजर। तो पोलराइजर से जो लाइट आ रही है वो एंगल थीटा पे डिपेंड है या नहीं? पोलराइजर से जो लाइट आ रही है, ध्यान से सुनो, पोलराइजर से जो लाइट आ रही है वो एंगल थीटा पे डिपेंड है या नहीं? No, sir. No. ओके, थीटा कितना भी रहने दो, यहाँ पे आप ये एनालाइजर को कितना भी घुमाओ, ओके, आप उसको 1 घंटा घुमाते रहोगे तो ये जो इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये आ रही है एनालाइजर, पोलराइजर से आ रही है, और पोलराइजर हमारा स्टेडी है, सोर्स स्टेडी है, सब कुछ स्टेडी है। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है आपको, तो वो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि I0 इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे I0 अगर कांस्टेंट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं I is directly proportional to cos square theta, and that is what is our statement of Malus law. Hence Malus law is proved. All right, next, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी ये हम पोलराइजेशन देख रहे हैं। तो पोलराइजेशन में
डबल रिफ्रैक्शन करके एक फेनोमेनन होती है। सिंगल रिफ्रैक्शन तो सबको पता है, ग्लास से कोई वाटर से आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होता है वो मटेरियल से, लेकिन देयर आर सर्टेन मटेरियल जिनमें कि डबल रिफ्रैक्शन होता है। तो ये पूरा जो रिमेनिंग चैप्टर है तो वो पूरा डबल रिफ्रैक्शन के ऊपर है। तो ये डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है तो वो डिटेल में हमें देखना है, लेकिन ये डबल रिफ्रैक्शन कौन से टाइप के क्रिस्टल में होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताऊंगा, जो शायद किसी स्टूडेंट को शायद पता भी होगा। तो वो क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा, इट्स वेरी सिंपल। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट इट इज एसेंशियल टू नो। सो क्रिस्टल जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आइसोट्रोपिक क्रिस्टल और दूसरा होता है एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल यानी कि जिनकी अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम अलोंग ऑल डायरेक्शंस, यानी कि फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्पीड ऑफ लाइट। So speed of light will be same along all direction in isotropic crystals. Rate of heat transfer will be same along all direction in the crystal. Anisotropic अलग होते हैं। Anisotropic में physical property changes as per the direction. So speed of light is not constant along all direction, but it is maximum along certain direction and it is minimum along certain direction. Similarly, rate of heat transfer is different along different directions. So such a crystals are called as anisotropic crystals. Again, anisotropic crystals are divided into two: uniaxial crystal and biaxial crystal. Uniaxial because they are having one optic axis, while biaxial are having two optic axis. अभी optic axis क्या होता है वो डिटेल में हम देखने वाले हैं बाद में later on. Again, these uniaxial crystals are divided into positive crystal and negative crystal. Examples दिए जा सकते हैं इसके biaxial के topaz, mica, gypsum, etc. These are anisotropic biaxial crystals. Positive uniaxial anisotropic crystal का example है quartz, ice, और negative का example है tourmaline, calcite. अभी सबसे important जो है ना यहाँ पे, though it is not in syllabus, this particular part is very very important, especially like this. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन। यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उसके एग्जांपल भी आपको याद रखना। पॉजिटिव का एग्जांपल है क्वार्ट्ज, आइस, और नेगेटिव का एग्जांपल है टूरमलिन, कैल्साइट। डबल रिफ्रैक्शन: इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्ज और कैल्साइट, quartz and calcite are double refracting crystals. It is divided into two rays refracted with a different velocities and in a different directions. This phenomenon is called as a double refraction. To understand this double refraction, you should understand a typical double refracting crystal's geometry. And a typical double refracting crystal, typical means it is widely available and it is having simple structure, therefore it is called as a typical. So typical double refracting crystal example is calcite crystal. So this is actual photograph of calcite crystal. Now we have to understand two terms here, optic axis and principal section. यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है, थोड़ी सी फेंट है बट स्टिल यू कैन सी दिस। यहाँ पे एक क्यूब जैसा आपको दिख रहा है, एक 3D क्यूब तरह दिख रहा है। फ्रंट जो फेस है PR, दिस एंड दिस, ये फ्रंट फेस है। ऊपर का ये वाला फेस है, ये साइड वाला फेस है। यहाँ पे बैक फेस है, लेफ्ट फेस है और बॉटम फेस है। आर यू एबल टू सी द 6 फेसेस ऑफ दिस क्यूब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्चुअली इट इज नॉट ए क्यूब, क्यूब नहीं है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है। क्यूब में मॉडिफिकेशन क्या है? सपोज आपका क्यूब जो है वो फ्लेक्सिबल है, ओके, और वो जो क्यूब है फ्लेक्सिबल है, जैसे कि रबर या फिर उसका इसका बना होता है क्या, क्ले, ऑल ऑफ यू नो क्ले। हाँ, तो सपोज वो जो क्यूब है उसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों को अगर हम प्रेस करेंगे तो जो चेंज आएगा, वो जो बदलाव आएगा उसके क्यूब के शेप में, तो जो नया शेप बनेगा वो इस तरह से रहेगा। ओके, सो दैट ये जो पर्टिकुलर एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये हो जाता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्यूब में पता है आपको, क्यूब में ऑल एंगल्स ऑफ कॉर्नर्स आर 90 डिग्रीज,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि सपोज प्रेस किया तो ये बड़ा हो जाएगा ये एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ग्रेटर देन 90 डिग्री ये एंगल बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये जो एंगल है इट विल बी अगेन लेस देन 90 डिग्री। ये ग्रेटर देन 90 हो गया तो ये लेस देन 90 होगा। सिमिलरली ये भी लेस देन 90 होगा, ये भी लेस देन 90 होगा, और बाकी के यहाँ पे ये ग्रेटर देन 90 रहेगा और दूसरी साइड में ये भी ग्रेटर देन 90 रहेगा। सो यहाँ पे सारे एंगल ग्रेटर देन 90 रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ब्लंट कॉर्नर या फिर एप्ट्यूज एंगल, एप्ट्यूज कॉर्नर या फिर ब्लंट कॉर्नर। ब्लंट विच इज नॉट शार्प, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लंट। ओके, सो ब्लंट कॉर्नर इसको बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर और एक्यूट कॉर्नर। तो सिमिलरली दिस विल आल्सो बी ब्लंट कॉर्नर एंड दिस वन विल बी शार्प कॉर्नर्स, एंड अदर जो रहेंगे वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट दिस विल बी completely blunt and these two will be completely sharp. Now what is optic axis? That is what we have to understand. Optic axis is a line joining the two blunt corners of calcite crystal. Okay, मैंने बोला था आपको this is a blunt corner, this is a blunt corner. So any line which is joining or passing through the two blunt corners is called as optic axis. यहाँ पे वो C axis दिख रहा है, actually it is O axis यानी कि optic axis. So this is the optic axis, and any line which is parallel to this line is also called as optic axis. So optic axis is not just a line, but optic axis is a direction in crystal. So this particular direction is called as optic axis, and our physical properties are symmetric around this particular optic axis. Now what is principal section? Now see the top face and bottom face. Highlighted दिख रहा है आपको top and bottom face? Yes, sir. Optic axis भी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Up. sir. Now I will define this principal section. Listen carefully. A plane which passes through the optic axis and which is perpendicular to the two opposite faces of the calcite crystal is called as principal section. I repeat, a plane which passes through the optic axis. यहाँ पे जो दिख रहा है प्लेन PQSR, 3 डायमेंशनली इसको इमेजिन करो. सो PQSR ये जो प्लेन है वो प्रिंसिपल सेक्शन है कैल्साइट क्रिस्टल का. डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन विच पासेस थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस and which is perpendicular to the two opposite faces. Two opposite यानी कि यहाँ पे जो highlighted top and bottom face दिख रहे हैं उसको perpendicular है. So this plane is called as a principal section of calcite crystal. यानी कि ये जो क्यूब है, ओके, सपोज अगर ये क्ले का होता, ओके, मिट्टी का बना होता, तो यहाँ पे अगर नाइफ से, ओके, चाकू से इसके 2 टुकड़े अगर हम करते तो ये जो डायगोनल में हम उसको काटते तो वो जो सरफेस बनता है यहाँ पे, ओके, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है उसका तो वो जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सेक्शन. You can take it out like this. You will find that one angle here is 71 degree and other is 109 degree. So this is called as a principal section of calcite crystal, जो कि एक पैरेललोग्राम की तरह होता है.